Hello everyone. So today we are going to discuss about the lacrimal apparatus. यहाँ अपन देखेंगे lacrimal apparatus के बारे में और क्विक रिवीजन करेंगे. तो what are the structure of the lacrimal apparatus? सबसे पहले अगर अपन देखें तो lacrimal apparatus में अपन को देखने को मिलती है lacrimal ducts. So it is lacrimal ducts. This is lacrimal gland. So this is the inferior lacrimal punctum and papilla. What is this structure? This is the lacrimal caruncle. Superior lacrimal punctum and papillae. Punctum and papilla. So this is the superior lacrimal punctum and papilla. Lacrimal sac. So this is the lacrimal sac. Lacrimal canaliculus. Below this is the nasolacrimal duct. And the nasolacrimal duct जो होती है वो ओपन होती है inferior nasal concha में. Inferior nasal concha. So this is the basic structure of the lacrimal apparatus. Now levator palpebral superior जो मसल होती है वो lacrimal gland को दो पार्ट में डिवाइड करती है, orbital part and the palpebral part. So there are two parts of the lacrimal gland on the basis of the levator palpebral superioris muscle. So this was about the basic structure of the lacrimal sac. Now, quick read about the theory. So, what is the lacrimal sac composed of? So, component are structure concerned with secretion and drainage of lacrimal or tear fluid constitute the lacrimal apparatus. लैक्राइमल एपरेटस के जो कंपोनेंट होते हैं उसमें क्या क्या आता है? तो लैक्राइमल ग्लैंड आती है, कंजक्टाइवल सैक आता है, लैक्राइमल पंक्टम और पेपिला आता है, लैक्राइमल सैक आता है और लास्ट होता है अपना नेसोलैक्राइमल डक्ट. सो लैक्राइमल ग्लैंड, कंजक्टाइवल सैक, लैक्राइमल पंक्टा एंड कैनानिकुलाई, लैक्राइमल सैक एंड नेसोलैक्राइमल डक्ट. दीस आर द कंपोनेंट ऑफ. Now, what are the secretomotor fibers for the salivary gland? Now we will discuss about the secretomotor fiber. कैसे saliva का secretion होता है? So the first is the lacrimal nucleus. Lacrimal nucleus. From lacrimal nucleus, fiber goes into the nervous intermedius. Fiber goes into the nervous intermedius. From nervous intermedius, there is a nerve originate which is known as the facial nerve. तो फेशियल नर्व नर्वस इंटरमीडियट न्यूक्लियस से ओरिजिनेट होती है. उसके बाद फेशियल नर्व जो हो जाती है वो जाती है जेनिकुलेट गैंग्लियन की तरफ. जेनिकुलेट गैंग्लियन. फ्रॉम जेनिकुलेट गैंग्लियन देयर आर टू नर्व्स, दैट इज ग्रेटर पेट्रोसल प्लस डीप पेट्रोसल नर्व. सो जेनिकुलेट गैंग्लियन में जो फेशियल नर्व होती है वो दो टाइप की ब्रांचेस देती है. एक तो ग्रेटर पेट्रोसल होती है, एक डीप पेट्रोसल नर्व होती है. फ्रॉम दिस देयर इज अ नर्व विच इज नोन एज नर्व ऑफ टेरिगोइड कैनाल. तो बोथ दिस नर्व कंबाइन एंटर इनटू द टेरिगोइड कैनाल एंड दे नोन एज द नर्व ऑफ टेरिगोइड कैनाल. नर्व ऑफ टेरिगोइड कैनाल. From nerve of pterygoid canal, we can see the pterygopalatine ganglion. So this nerve will relay into the pterygopalatine ganglion. Pterygopalatine ganglion. From pterygopalatine ganglion, greater petrosal nerve leave behind, and the remaining nerve relays into the postganglionic fiber. Postganglionic fibers. From postganglionic fibers, the nerve pass along the maxillary nerve.
The nerve passes through the maxillary nerve, and from maxillary nerve it passes into the zygomatic nerve. Zygomatic nerve. There it gives a branch which is known as zygomaticotemporal. So zygomaticotemporal nerve, temporal nerve. So it gives rise to the communicating branch to the lacrimal gland. So communicating branch to the lacrimal will give rise to the lacrimal nerve, and from lacrimal nerve it goes into the lacrimal gland. So this was all about the secretomotor fibers of the lacrimal gland. So lacrimal nucleus से क्या होता है, नर्वस इंटरमीडियस में फाइबर रिले करते हैं, उससे फेशियल नर्व निकलती है, फेशियल नर्व कैनिकुलेट गैंग्लियन में पास होकर दो ब्रांचेस देती है, ग्रेटर पेट्रोसल एंड डीप पेट्रोसल नर्व। वहां से नर्व जो होती है वो टेरिकोइड कैनाल में जाती है, उससे टेरिकोपलेटन गैंग्लियन में रिले होने के बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स बनते हैं, जिससे मैक्सिलरी नर्व ओरिजिनेट होती है। मैक्सिलरी नर्व जो हो जाती है वो जाइगोमेटिक नर्व के अलोंग पास करती है, जैसे जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व जो होती है उसकी ब्रांच निकलती है जो कि कम्युनिकेटिंग ब्रांच देती है लेक्राइमल ग्लैंड को, उससे लेक्राइमल नर्व निकलती है और वो सप्लाई करती है लेक्राइमल ग्लैंड को। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सीक्रेटोमोटर फाइबर ऑफ द लेक्राइमल ग्लैंड। नाउ व्हाट इज द क्लिनिकल एनाटॉमी? इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेक्राइमल सैक इज नोन एज द डेक्रोसिस्टाइटिस। तो अगर लेक्राइमल सैक का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे, डेक्रोसिस्टाइटिस। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। The duct of the lacrimal gland open through its palpebral part into the conjunctival sac. Because of this arrangement, the removal of the palpebral part necessitates the removal of the orbital part as well. तो होता क्या है कि जब हम palpebral part को रिमूव करते हैं तो हमें orbital part को भी रिमूव करना नेसेसरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो डक्ट्स होती है लेक्राइमल ग्लैंड की वो ओपन होती है palpebral part into both conjunctival sac। तो पाल्पेब्रल पार्ट के थ्रू वो कंजक्टिवल सैक में ओपन होती है, जिस वजह से पाल्पेब्रल पार्ट के साथ अपन को रिमूव करना होता है ऑर्बिटल पार्ट भी। Excessive secretion of the lacrimal fluid, mostly due to emotional stress. A tear not only flow to the cheek but also flow through the nasolacrimal duct in the nasal cavity due to the stimulation of the pterygopalatine ganglion. So pterygopalatine ganglion के stimulation होने की वजह से जो टीयर होते हैं वो nasolacrimal duct से भी फ्लो करते हैं और आइस से भी फ्लो करते हैं। एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ द लेक्राइमल फ्लूइड ओवरफ्लो ऑन द चीक कॉल्ड द एपिफोरा। तो जब एक्सेसिव फ्लूइड का सीक्रेशन होगा लेक्राइमल फ्लूइड का चीक की तरफ तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एपिफोरा बोलते हैं। एपिफोरा में रिजल्ट ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द लेक्राइमल फ्लूइड पाथवे आइदर एट द लेवल ऑफ द पंक्टम और कैनानिकुलाई और नेसोलेक्राइमल डक्ट। तो एपिफोरा जो होता है वो किस वजह से हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन अलग अलग जगह पे होने की वजह से हो सकता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन पंक्टम में हो सकता है, कैनानिकुलाई में हो सकता है, नेसोलेक्राइमल डक्ट में हो सकता है। So this was all about the clinical aspect of the lacrimal duct. Now we will revise the concept into the smaller point. So lacrimal gland is serous gland. Lacrimal gland जो होती है वो serous gland होती है, वो कहाँ लोकेटेड होती है, अपने lacrimal fossa में। Lacrimal gland is a J-shaped gland होती है जो कि लेवेटर पाल्पेब्री सुपेरियोरिस के टेंडन के थ्रू दो पार्ट में डिवाइड होती है, इट इज ऑर्बिटल पार्ट एंड पाल्पेब्रल पार्ट। सो ऑर्बिटल एंड पाल्पेब्रल पार्ट। आर्टेरियल सप्लाई क्या होती है इसकी, लेक्राइमल ब्रांच ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी, और इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है, लेक्राइमल नर्व। नेक्स्ट इज कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा जो कि डीप होती है आईलिड पे उसको अपन बोलते हैं पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा, और जो फ्रंट होती है आईबॉल के फ्रंट में होगी उसको बोलेंगे अपन बल्बर कंजक्टाइवा। व्हाट इज लेक्राइमल पंक्टा एंड कैनानिकुलाई? ईच लेक्राइमल कैनानिकुलाई जो हो जाती है वो कहाँ से बिगिन होती है, लेक्राइमल पंक्टम से बिगिन होती है, ये 10 मिलीमीटर लॉन्ग होती है। बोथ कैनानिकुलाई ओपन हो जाती है लेटरल वॉल ऑफ लेक्राइमल सैक में। व्हाट इज द लेक्राइमल सैक? लेक्राइमल सैक जो हो जाता है वो मेम्ब्रेनस सैक होता है जो कि 12 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, 5 मिलीमीटर वाइड होता है। सिचुएटेड इन द लेक्राइमल ग्लैंड। तो लेक्राइमल सैक जो होता है वो लेक्राइमल ग्लैंड के अंदर सिचुएटेड होता है, बिहाइंड द मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट। अपर एंड जो होता है इसका ब्लाइंड होता है। व्हाट इज नेसोलेक्राइमल डक्ट? सो मेम्ब्रेनस पैसेज होता है, 18 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, बिगिंस लोअर एंड ऑफ द लेक्राइमल सैक, रन करता है डाउनवर्ड बैकवर्ड ओपन इनटू द इंफीरियर मेटस ऑफ द नोज। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्राइमल ग्लैंड इन शॉर्ट। इट इज अ इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी टॉपिक एंड नेक्स्ट वीडियो में अपन और इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी टॉपिक्स जो होते हैं हेड एंड नेक के उसको डिस्कस करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाओ। थैंक यू सो मच।